Assalamu alaikum class. Our today's topic is gas exchange in human beings. Right, उसकी डिटेल को हम फर्स्ट टाइम वैसे क्लास में भी कर चुके हैं, बट दिस इज़ द सेकंड टाइम एज अ पार्ट ऑफ रिविजन. सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी पूरी डिटेल्स को देखेंगे. द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ a pair of lungs and a system of air tubes. There are major air tubes and then the tubules. After that division of air tube, tubules are formed that carry air to and from lungs. Right, ये एयर को लंग्स में लेकर भी जा रही हैं और वापस भी ला रही हैं. लंग्स क्या हैं? These are the gaseous exchange organ in air breathing vertebrates and some other animals. Diaphragm is a muscle that forms the floor of the chest cavity. Pleura is a membrane that covers the lungs. It is a double membrane, two-layered membrane, or bilayered membrane, right? This is the pathway of air. Air enters from the nose, then it passes to the pharynx, then to the larynx. Larynx is also known as vocal cord. Trachea को हम windpipe भी कहते हैं. Then trachea are divided into bronchi are further subdivided into bronchial tubes, and then the bronchioles, and then the alveoli are also known as air sacs. Right, this is a diagram that is showing the pathway of air, that is from nostrils to the pharynx, then to the trachea, after that the bronchi to bronchioles, and from bronchioles to the alveoli. Right, यहाँ पे पेयर ऑफ लंग्स है, राइट और लेफ्ट लंग है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लैरिंग्स को दिखाया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज वोकल कॉर्ड. वोकल कॉर्ड इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द साउंड. राइट, here is another diagram again showing the pathway of air, जहाँ से हवा गुजर के बॉडी में जा रही है, बॉडी से वापस जो वेस्ट एयर है वो वापस आ रही है. राइट, okay, we'll talk about one by one the organs of the respiratory system. First is nose. Nose is further divided into nostrils. There are two nostrils in human beings. These are the entrance point of the air. The spaces in the nose are known as nasal passages, and hair presence is there in the nostrils that prevent the foreign substances from entering into the nose. The walls of nasal cavity are covered with mucous membrane, and the function of mucous membrane is to moisten the ears, and a part of that it has cells that have cilia. And what is the function of cilia? That cilia traps the bacteria, dust particles, and unnecessary particles from entering into the nose, right, or the trachea. Pharynx mean we are talking about the throat region of our. From nasal passages, air travel through the throat. It connects the nasal cavity and oral cavity to the larynx or vocal cord. Tonsils form a protective barrier at the junction of pharynx and oral cavity. ओरल कैविटी और फेरिंग्स के बीच में एक जंक्शन, एक जॉइंट फॉर्म करते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करते हैं कि जो ओरल कैविटी से फूड वगैरह जा रही होती है उसको साइड पे नहीं जाने देता. इसके अलावा इस प्रिवेंशन के लिए एपिग्लॉटिस भी हुआ करता है, उस पर हम बाद में बात कर रहे हैं. राइट, the larynx, next organ is the larynx, or we can say the voice box. It is made up of mainly cartilage. What cartilage is? Cartilage is a soft bone. Right, vocal cords are two pairs of membrane that are stretched across the inside of the larynx. ये membranes का एक stretched membrane, मतलब एक टाइटनेस के साथ बाउंड हुई हुई मेम्ब्रेन का एक पेयर है, जिसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ करती है. एज एयर इज़ ब्रीथ आउट, द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट एंड द साउंड इज़ प्रोड्यूस. जब एयर बाहर निकल रही होती तो ये वोकल कॉर्ड्स क्योंकि सॉफ्ट हुआ करते हैं, स्ट्रेच होते हैं, इसलिए इनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, डेलिकेट हुआ करते हैं और इस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है.
Next organ is epiglottis. This prevents the choking during swallowing food, and liquid are blocked from entering the opening of the larynx by the epiglottis. कि अगर हमारी जो फूड ट्रैक है, राइट, डाइजेशन ट्रैक जो है, वहाँ से अगर थ्रॉट रीजन से फूड एंटर हो रही है हमारे ईसोफेगस के अंदर, तो ये ईसोफेगस में स्वेलिंग ऑफ फूड के दौरान ये क्या करता है, एयर पाइप को बंद कर दिया करते हैं, जिसकी वजह से फूड चोक नहीं हुआ करती, या लिक्विड जो अगर हम ले रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिक्विड, तो उस वक्त ये क्या करते हैं, एयर पाइप को बंद कर देते हैं ताकि वहाँ पे लिक्विड पार्टिकल्स या फूड पार्टिकल्स ट्रैप ना हो, राइट। नेक्स्ट इज ट्रैकिया. Trachea is made up of smooth muscles, cartilage, and mucous membrane. Mucous membrane keeps the air moistened. Cartilage जो होती है उसके अंदर भी सीलिया भी हुआ करते हैं, और ये एक flexible pathway provide करी for the entrance of the air, right? It always open by cartilaginous ring. ट्रैकिया के अंदर सर्कुलर राउंड शेप जो होती हैं, रिंग्स की फॉर्म में कार्टिलेज हुआ करती है. इनसाइड ऑफ इट is lined with ciliated mucous membrane, जो कि फर्दर ट्रैप करती है अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो उनको. प्लस यहाँ पे क्योंकि ये मेम्ब्रेन म्यूकस वाली होती है, मॉइस्ट करती है ये एयर को, राइट. नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ब्रोंकाई. ब्रोंकाई बनते हैं बाय द डिविजन ऑफ ट्रैकिया, ठीक है. ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू and form two bronchi, and these bronchi lie in the middle of the chest cavity and they again are made up of cartilage lined with ciliated cells. When they enter the lungs, ये फर्दर सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, और उन सब ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स. ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होती हैं फर्दर सब और स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, जो कि पूरे लंग्स के अंदर उनका नेटवर्क फैला हुआ होता है, और इन टाइनी फर्दर सब डिवाइडेड ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स. अल्वेलॉय और द एयर सेक्स. अब ये जो ब्रोंकियोल हैं जो कि ब्रोंकियल ट्यूब्स की डिवीजन से बने हैं, ये एंड पे जाके पाउचेस में छोटे छोटे सेक्स में ओपन हुआ करते हैं, दैट आर नोन एज अल्वेलॉय. और अल्वेलॉय ही वो पॉइंट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ करता है, राइट. और ये अल्वेलॉय क्योंकि एक साथ बहुत सारी मौजूद हुआ करती हैं, तो ये क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की तरह, अंगूर के गुच्छे की तरह का पार्ट बनाया करते हैं लंग्स के अंदर. आप लोग इसमें पिछली डायग्राम्स को भी देख सकते हैं, आगे की स्लाइड्स में भी हम लोग अल्वेलॉय की डायग्राम को डिटेल आउट करने वाले हैं, राइट. ईच चैम्बर कंटेन्स सेवरल कप शेप कैविटीज़ एंड दोज कैविटीज़ आर नोन एज अल्वेलॉय. वॉल्स ऑफ अल्वेलॉय की बात करते हैं तो ये बहुत डेलिकेट हुआ करते हैं, और इनकी थिकनेस सिर्फ एक सेल जितनी होती है, इसीलिए मैंने कहा कि दीज आर द मेन सेंटर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इनकी सरफेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ब्लड कैपिलरीज का पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ होता है, और उस नेटवर्क के अंदर एयर डिफ्यूज़ हो जाती है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एयर पास ऑन हो जाती है फ्रॉम अल्वेलाई टू दोज ब्लड कैपिलरीज. ये अगर हम बात करते हैं अल्वेलॉय की, तो ये मॉइस्ट हुआ करती हैं, और इनके ऊपर पूरा नेटवर्क जैसे कि मैंने कहा कि कैपिलरीज का हुआ करता है. क्योंकि ये थिन होती हैं, डेलिकेट होती हैं, इसलिए इनकी जो सरफेस होती है दैट इज़ द आइडियल सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड दोज गैसेस आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन हो जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्टिजियल प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वहाँ से आउट हो जाया करती है, वहाँ से रिलीज़ होकर अल्वेलॉय के अंदर एंटर हो जाया करती है. नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग बाकी चीज़ों को डिटेल आउट करने वाले हैं. थैंक यू फॉर दिस वन.